Hello, Assalamualaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and this is the football special. Today's episode will be focused on the international football scene happening right now. Qualifiers हो रहे हैं जी World Cup 2026 के इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो वाला एक्शन भी चल रहा है, साथ साथ पाकिस्तान में भी लोकल फुटबॉल एक्शन चल रहा है. We'll talk about that in detail as well. एंड थोड़ी सी बात हम प्रीमियर लीग के ऊपर भी करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली प्रीमियर लीग का भी एक्शन इस वक्त चल रहा है. सो वी विल बी कवरिंग दैट इन टुडेज शो एज वेल. मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड विद अस till the very end. Before we begin our discussions, a quick look at the sporting news from around the world. Valentin Vaquero completed a remarkable journey at the Rolex Shanghai Masters, rallying to defeat his cousin Arthur Rinderknech for 6-6, 6-3, 6-3 in the final on Sunday. He becomes the lowest ranked player in ATP Masters 1000 history to claim a singles title. World number 3 Coco Gauff defeated her doubles partner and compatriot Jessica Pegula 6-4, 7-5 to win the Wuhan Open, securing her second WTA 1000 title of the season. The 21-year-old American clinched the victory after reeling off 4 straight games in the second set from 5-3 down. Erling Haaland was unstoppable again for Norway, netting his 6th hat-trick of the qualifiers in a crushing 5-0 victory over their opponents in Group 1 of the European World Cup qualifiers. Inter Miami secured a dominant 4-0 shutout victory against Atlanta United just before the end of the MLS regular season. Lionel Messi led the line with a brace, scoring in the 39th and 87th minutes, while Jordi Alba and Luis Suarez each added a goal in the second half. Turkey delivered a stunning performance in Sofia, thrashing Bulgaria 6-1 in their World Cup qualifier, scoring 5 goals in a dominant second-half display. Young star Arda Güler was instrumental, opening the scoring and providing 2 assists as Turkey solidified their second-place position in Group E. Well, this was sports news for you from around the world. यहाँ पर एक break लेंगे, but when we come back, football action it is starting with, of course, पाकिस्तान में जो भी खेले जा रहे हैं AFC Asian Cup qualifiers एंड उसके अलावा पाकिस्तान फुटबॉल टीम के क्या चांसेस हैं एंड ऑफ कोर्स हम ब्रॉडर स्कोप की भी बात करेंगे और इंटरनेशनल क्वालिफायर्स भी चल रहे हैं तो वी विल बी जॉइंड बाय 2 वेरी स्पेशल फुटबॉल एक्सपर्ट्स. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट.
Ji, thank you for joining us back. You're watching Sports Tonight and it is the football special. पहले बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान फुटबॉल की. यहाँ से अगर हम देखें अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो एट होम हमने मैच खेला, देयर वर सम पॉजिटिव्स, लेकिन अभी जर्नी जो है वो बहुत तवील है पाकिस्तान फुटबॉल की. और यहाँ से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स पाकिस्तान फुटबॉल ऐसा क्या कर सकता है टू इम्प्रूव एंड टू really look at and nurture the raw talent that we have, because there is so much raw talent. हम अपने शो में भी अक्सर बात कर चुके हैं फुटबॉल के हवाले से, बट आज थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन होगी. वी आर जॉइंड बाय टू वेरी स्पेशल फुटबॉल एक्सपर्ट्स. हमारे रेगुलर हसन आजम हैज़ जॉइंड अस back on the show. Thank you so much for joining us, Hassan. Thank you. A pleasure to be here once again. Thank you. And we will be talking football, but आज थोड़ा सा discussion का topic different. It's not really all centered on Premier League, जो कि normally हमारा show होता है, but today a little bit of a local touch, so we can't wait to hear your analysis and views on it. उनके साथ जी हमें join किया है another football lover at heart, another regular of Sports Tonight, Rehanul Haq, GM Islamabad United. Thank you so much for joining us back. Thank God हम फुटबॉल की बात करें. I can say whatever I want to say. Yes. Also, it's still my favorite sport, so yeah. And you also closely follow whatever local activity is happening in Pakistan. लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का वो ब्रॉडर कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं बन सकता इन द लॉन्गर रन, क्योंकि ठीक है लोग गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलते भी हैं और कुछ व्यूअर्स भी हैं, लेकिन is that true? Is there no case for football viewership as far as something local is concerned? I think वो एक हैशटैग है ट्विटर पे, नाउ इट्स कॉल्ड एक्स, चलता है कि पाकिस्तान में हैशटैग पाकिस्तान में फुटबॉल कोई नहीं देखता, और वो सार्कास्टिक हैशटैग है. और उसकी वजह यह है कि इवन अगर आप पाकिस्तान का लास्ट मैच देखें, द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट एट द स्टेडियम, इट वाज अनबिलीवेबल. आई रिमेंबर एक मैच में कवर कर रहा था, आई डोंट नो 7-8 years ago maybe now, पाकिस्तान का मैच था एंड आई वाज एट द स्टेडियम. इट वाज जैम पैक्ड बैक देन एज वेल. प्रॉब्लम ये आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास ग्राउंड्स नहीं है जिधर ये आप रेगुलरली कर सकें, और उससे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपकी लीग नहीं है. पिछले 5 से 6 साल, बल्कि मे बी इससे भी ज़्यादा साल हो गए हों, आई हैव इवन लॉस्ट काउंट नाउ, क्योंकि इतनी देर से ही हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ रही है, नए इलेक्शन हो रहे हैं, खोखर जो हैं वो बन गए हैं प्रेसिडेंट, अब वो उतर गए हैं प्रेसिडेंट. मतलब इतनी चीज़ें हो रही हैं कि यू लूज़ काउंट. बट द मेन थिंग इज़ कि नो मैटर हु कम्स इन हु गोज़ अवे, आपकी लीग नहीं हो रही रेगुलरली. आपकी जो नेशनल लेवल की लीग है वो नहीं हो रही. और उसके बाद हम लोग कंप्लेन जितना मर्जी करें कि नेशनल टीम अच्छा कर रही है, नेशनल टीम अच्छा नहीं कर रही. फुटबॉल क्रिकेट नहीं है. फुटबॉल में आपको क्लब फुटबॉल चाहिए, आपको एक वो चीज़ चाहिए, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, और जिधर है उसको बेसिकली इंस्टेड कि उसको प्रमोट किया जाए, उसको दबाया जाता है. और जब तक आपके अपने मुल्क की लीग नहीं होगी डिफरेंट ईयर्स की, तब तक ये वन ऑफ सिचुएशंस ही हम डिस्कस करते रहेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई फुटबॉल देखता नहीं है, तो मैं उनको कहूँगा कि आपको थोड़ी एक्सपोजर की कमी है, आप थोड़ा एक्सपोजर ले लें तो शायद आपको पता चले कितना पाकिस्तान में फुटबॉल देखा जाता है. मैच की क्लिप्स देख लें और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है, फाइनली सम पॉइंट्स ऑन द टेबल फॉर पाकिस्तान एज वेल. लेकिन लेट्स आल्सो फर्स्ट टॉक अबाउट दिस सपोर्ट, जो लोकल सपोर्ट पाकिस्तान टीम के लिए था. जो भी मैच का रिजल्ट हो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंडिकेशन कि देयर आर पीपल हु care about the Pakistan football team, who want to support the football team and who are really interested in what's happening in the football scene. And उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Absolutely, I think और वो जो crowd था उसमें it represented all strata of our community. हर तरह के लोग थे और हर तरह की जर्सीज पहन के आए हुए हैं. इतनी different representations थी of jerseys of all the clubs and everywhere around the world. Absolutely, और वो fans हैं भी. अगर आप मतलब major clubs की, कुछ मेजर क्लब्स के पाकिस्तान के पेजेस भी आप देख लेना, मैनचेस्टर यूनाइटेड पाकिस्तान सपोर्टर्स, आर्सेनल पाकिस्तान, तो भरे पड़े हैं उन लोगों से, और वो बड़े एविड फॉलोअर्स हैं. असल में उस क्वालिटी और वो रेगुलरिटी की जो रेहान ने बात की, फुटबॉल हमें मिलती नहीं है. दैट्स द इशू. वेरी फुटबॉल सेवी ऑडियंस एज वेल. वो मैच में भी आपको फील हो रही थी. एज सून एज आपको पता था कि राइट विंग पे क्रॉस करने की जगह मिली है, तो एक क्राउड में आपको फरवर और बज नजर आती थी, सुनाई देती थी. इसका मतलब उन्हें समझ आ रही थी हाउ द गेम इज इवॉल्विंग एंड हाउ इट्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑन द फील्ड एज वेल. कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल सेवी ऑडियंस है आपकी. असल में उनको मौके नहीं मिल रहे वो क्वालिटी की फुटबॉल देखने के और अपनी टीम की परफॉर्मेंसेज एंजॉय करने के. और अगर एक लीग फॉर्मेट, एक मॉडल क्रिएट हो, तो देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट फॉर कमर्शियल स्टेक होल्डर्स बट फॉर प्लेयर्स, फॉर एवरीवन who can be involved. Rehan और हसन, आप दोनों क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड में इतना क्लोजली you've been working with the franchise model for so many years, and do you think
you can, you know, perhaps replicate some of that into football. थोड़ा स्केल आप उसको बेशक मिनिमाइज कर लें, बट कुछ तो करें, कुछ तो स्टार्ट करें. आई थिंक फ्रेंचाइज मॉडल इज़ नॉट द आंसर फॉर फुटबॉल. आई थिंक ठीक है फ्रेंचाइज मॉडल आप एक पॉइंट पे ले हैं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर मे बी प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन पुट इन दैट मनी, बट लॉन्ग टर्म फुटबॉल लीग सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रॉपर लीग क्लब स्ट्रक्चर ज़रूरी है. ठीक है. उसका मतलब ये है कि क्लब है, क्लब के नीचे उसकी यूथ अकेडमी है, उसकी एक पूरी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड, सारा कुछ, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, वो सारी कम्युनिटी आकर वहाँ पर खेल सकती है, ट्रायल्स दे सकती है. अंडर 13 के बच्चे आ रहे हैं, उनकी एक सेपरेट टीम बन रही है, उनमें से वो लोग ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं. फुटबॉल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिफरेंट है. फुटबॉल उस तरह से नहीं चल सकती जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स चलती हैं. इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड ऑल्सो इट्स अ पीपल स्पोर्ट. मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्रिकेट खेलनी होगी ना, मुझे हेलमेट खरीदना पड़ेगा, पैड्स खरीदने पड़ेंगे, ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे अगर मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेलनी है. ठीक है, फुटबॉल मुझे एक बॉल चाहिए एंड दैट्स इट. मतलब आपके जो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ब्राज़ील वगैरह से हैं वो नंगे पाँव खेल कर आए हैं. तो ये कम्युनिटी की स्पोर्ट है, तो उसको कम्युनिटी में ही रहने देना चाहिए. और वो एक क्लब का स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करेंगे और जब नीचे से वो टैलेंट ऊपर आ रहा है और क्लब की जिम्मेदारी है, क्लब अपने फाइनेंसेस खुद क्रिएट कर रहा है, क्लब अपने आप को खुद कमर्शलाइज कर रहा है, तब आपकी फुटबॉल लॉन्ग टर्म जो है उसका आपको फ़ायदा होगा. एंड पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे फुटबॉल बहुत सालों से खेली जाती है. लियारी इज़ वन ऑफ दोज कम्युनिटीज़, बट और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं वेयर पीपल हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर जनरेशंस, बट व्हाई हैजंट दैट ट्रिकल्ड डाउन टू समथिंग बिगर या समथिंग मोर सब्सटेंशियल, और हैज इट? या अगर आप हमें बता No, that actually hits at the heart of the matter. अभी जो सोलानो हमारे कोच हैं उन्होंने भी ये बात की कि पाकिस्तान में स्ट्रीट फुटबॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह ये है कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो चीज़ करने की. मैं आपको इससे क्रिकेट की इस तरह मिसाल दूंगा. मतलब आप पाकिस्तान की फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को हमेशा क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि आपको पिचेस मिल जाती हैं, ग्राउंड्स मिलते हैं, बट वो ग्राउंड की मेंटेनेंस उस तरह नहीं हुई होती. इस तरह हमारे प्लेयरों को अर्ली ऑन डाइविंग की आदत नहीं पड़ती when they're growing up playing cricket. Similarly फुटबॉल में फुटबॉलर्स के लिए अगर जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, वो स्किल तो अपनी डेवलप कर लेते हैं, बट टू प्ले दैट ऑन अ फील्ड विच यू कैन रोल द बॉल ऑन, ठीक है, जिसपे आपको फील होता है अपना टच भी और सारा कुछ, वो इतने क्रैम्प्ड स्पेसेस में और ऐसे ग्राउंड्स में खेलते हैं कि वो उस फील्ड में उन्हें खेलने की आदत ही नहीं होती. मैं मिसाल दूंगा मोरक्को की. उन्होंने 10-12 साल पहले 15 से 20 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल पिचेस इंस्टॉल की अपने यूथ डेवलपमेंट सिस्टम में और अपने डोमेस्टिक लीग के अंदर. पिछले वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा वो अफ्रीकन टीम बनी जो सेमीफाइनल तक पहुंची. रिजल्ट्स लेते हैं, टाइम लगते हैं, बट उन्हें पता था किस जगह पे इन्वेस्ट करना है. सिमिलरली जो रेहान बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं कि अगर आप अपना डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनाते हो देन ऑलवेज जो फ्रेंचाइजिंग होगी वो नेक्स्ट स्टेप होगा. बट जब कोई बुनियाद होगी, कोई जगह होगी जहाँ पे रेगुलरली लोग आके अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकें और ग्रूम कर सकें, फिर पाकिस्तान की फुटबॉल आगे जाएगी. और सोलानो ने भी इसके ऊपर बात की है कि उनका फोकस कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है, बट उनका फोकस ये भी है कि ये डेवलपमेंट सिस्टम को किस तरह इनकरेज किया जा सकता है. बिल्कुल. लेट्स टॉक अबाउट द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान. किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान की टैक्टिक्स को, अप्रोच को, एंड व्हाट कैन वी डू बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक बहुत लंबी जर्नी है, ये जो क्वालिफायर्स हैं और इतनी सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं. हाउ कैन पाकिस्तान create an edge for themselves? I was lucky enough to meet Solano and interview him and talk to him about कि वो कैसे देखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल को, what is his ideology tactically. तो जो उन्होंने मुझे बताया कि he prefers, मतलब उनकी जो आइडियल फॉर्मेशन है वो है 4-4-2, where वो he uses wide men quite a lot and दो स्ट्राइकर्स हों. तो very similar to जब वो न्यूकासल यूनाइटेड के लिए खुद खेलते थे, तो him and Laurent Robert on the other side and then they had Bellamy and Alan Shearer की upfront partnership होती थी. That's his idea. But then he was also proactive enough कि to think कि मुझे देखना पड़ेगा कि हमारे पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो उस तरह खेल सकते हैं कि नहीं. I have to adjust to the players rather than the players adjusting to my system. तो he said he will need to take time and वहाँ पर adjust करना चाहिए. तो इसके बाद सोलानो जब पाकिस्तान टीम के साथ आए तो उसके बाद काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो रिकॉल हुए एंड रिकॉल के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स आए कि यार ये तो अपनी पीक से गुजर चुका है, वाई इज़ ही गेटिंग सेलेक्टेड इन द टीम, ये वो. तो उस पर मेरा ये होता है कि सोलानो इज़ न्यू, ही डजंट नो, मतलब उसको पाकिस्तान के ग्रास रूट्स के ऊपर या पॉलिटिक्स पिछले 5-10 साल के अंदर नहीं पता. दैट्स वेयर समवन लोकल नीड्स टू हेल्प हिम आउट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन है. हसन ने अभी मोरक्को की बात की. वन ऑफ द थिंग्स दैट मोरक्को ऑल्सो डिड वाज कि जब उनका यूथ टैलेंट डेवलप हो रहा था
तो उन्होंने उन प्लेयर्स को आके अपने मुल्क के लिए खिलाया जो कि वर प्लेइंग देयर फुटबॉल इन यूरोप, हैड नेवर प्रॉब्ली इवन स्टेड इन मोरक्को, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स मोरक्को में रहते थे, उनकी नेशनैलिटीज इस तरह की हुई, उनको नेशनल टीम में लेके आए टू गिव द यंगर जनरेशन टाइम टू लर्न फ्रॉम दोज गाइज एंड देन द मोरक्कन, मतलब उनका एक पूरे फेडरेशन का, अभी वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वो एक सेपरेट इशू है, बट एटलीस्ट उनका फुटबॉल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी वॉज वेरी क्लियर। पाकिस्तान के अंदर आप जितनी मर्जी हम टैलेंट निकालें, मतलब आप कल को मेसी निकाल लें फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो मेसी क्या करेगा मुझे बताएं, मतलब कोई लीग ही नहीं है, कोई यूथ सिस्टम ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मतलब आई एम ग्लैड कि आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स इस टाइम मिल रहे हैं जिनकी बॉल के ऊपर क्वालिटी इतनी अच्छी है, और उसकी एक बहुत मेजर वजह ये है कि अभी जो आपके प्लेयर्स आ रहे हैं ना, कुछ गाजी फॉर एग्जांपल इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने फुटसॉल खेली हुई है, और जब आप फुटसॉल खेलते हैं तो आपकी टेक्निकली क्लोज स्पेसेस के अंदर बॉल कंट्रोल आपका अच्छा होता है, आप टर्न अच्छी तरह का, यू कैन सी अ पास, यू कैन पिक आउट दैट पास। तो जो पुरानी सोच है ना पाकिस्तान की हर स्पोर्ट में, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो वो 150 साल पुरानी सोच है ना, वो दैट होल्ड्स अस बैक, कि अभी भी वो कि जी लॉन्ग बॉल खिलाओ और उसके बाद सेकंड बॉल के ऊपर आप पाओ, वो चीज़ें नहीं रही हैं, नहीं हो पा रहा है, एवोल्यूशन नहीं हो पाया। बट वी टॉकिंग अबाउट आलमगीर गाजी, इज मिडफील्डर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं और एक प्रॉमिसिंग यंग एथलीट हैं। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट हिम एंड व्हाट ही एड्स टू दिस टीम? आई थिंक टेक्निकल एबिलिटी, फर्स्ट टच की बात करें, स्पेस अवेयरनेस की बात करें, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं हु नोज हाउ टू यूज़ दैट, और सोलानो भी चाहते हैं ऐसे प्लेयर हो। उनकी वजह यह है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी इस तरह करते हैं कि सोलानो खुद भी एक फ्लैम्बॉयंट प्लेयर थे, ठीक है, वो एक ऐसे विंगर थे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, जो कि पेरू की नेशनल टीम को 2018 में क्वालिफिकेशन के थ्रू 36 साल बाद लेकर भी गए वर्ल्ड कप में एज एन असिस्टेंट कोच। तो वो ऐसे ही प्लेयर प्रेफर करते हैं और इनमें उनको ऐसे ही मिडफील्ड में एक प्लेयर मिलते हैं। बल्कि हमने ये भी देखा है कि खास तौर पे इस मैच में, आपने जो इस मैच की बात की है, कि एक पाकिस्तान टीम ज़्यादा डिसिप्लिन नजर आई, क्योंकि पहले पाकिस्तान की फुटबॉल जो थी वो बड़ी देर हवा में होती रही है, ठीक है, ज़मीन पे नहीं खेली जा रही होती थी, वो लॉन्ग बॉल्स और गोइंग फॉर द सेकंड वाज वेरी फिजिकल स्टाइल ऑफ फुटबॉल। इनके आने के बाद वो चीज़ में हमने फ़र्क भी देखा है, और सेकेंडली आपके विंगर्स और फॉरवर्ड लाइन को हमें क्लियर चांसेस मिले थे। लाइक आफ्टर अ व्हाइल आई सॉ अ पाकिस्तानी गेम वेयर यू सेड योर टीम एक्चुअली डोमिनेटेड the opposition, especially in the second half. And now my next question हमारी यही बनता है कि क्या पाकिस्तान के पास चांस है to play the Asian Cup in Saudi in a couple of years time? I think जो नए फॉर्मेट्स हैं ना, उसके अंदर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू एटलीस्ट गो टू द नेक्स्ट राउंड्स, एंड वंस यू गेट टू द नेक्स्ट राउंड्स देन इट्स एनीवन्स गेम। और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी, अनफॉर्चुनेटली अभी हसन ने बात की कि वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल, एक जनरेशन आई थी इससे पहले, उसमें हसन बशीर थे, सादुल्ला, ऑल दिस गाइस दे यूज्ड टू प्ले, एंड ये इनकी एक दो मैचेस जब अगर आपने देखे हो उस टाइम के ऊपर, तो यू सॉ के देयर इज पोटेंशियल, या यू सॉ ग्लिम्पसेस, एंड देन यू हैड 5 years ऑफ देम नॉट प्लेइंग एनी लीग फुटबॉल। सो अभी भी हमने ये वन ऑफ मैच की हम बात कर लेंगे, बट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? What's next? How are you capitalizing on that momentum जो आपकी टीम को जो गाजी की एक और, आई वांटेड टू टॉक अबाउट गाजी अ बिट मोर, बिकॉज मुझे पाकिस्तान में ऐसा, मतलब आई माई सेल्फ आई एम अ बिग फैन ऑफ मिडफील्डर्स हु कैन क्रिएट। सो बेसिकली उनकी जो जर्नी रही है, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एज वेल। नेमार जूनियर 5 भी वो खेले, फुटसॉल वो काफ़ी खेले, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट कराची यूनाइटेड एज वेल, प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल इन इस्लामाबाद एज वेल एट यूथ लेवल्स। एंड फनी चीज़ ये है कि एनी वन हुज फॉलोड हिम न्यू के ही विल प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने ट्रायल दिए फिर, मतलब जहाँ पे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे उसके बाद भी उन्होंने ट्रायल दिए, मतलब डजंट मेक सेंस टू मी। देन अभी वो भूटान के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड ही इज़ अ टॉप प्लेयर। अब मसला ये है कि अब वो 24 साल के हो गए हैं, 16 इंटरनेशनल कैप्स हैं उनकी, विच इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट कि इतना टैलेंटेड प्लेयर्स को पाकिस्तानी फैंस कोई नहीं देख सके इतना ज़्यादा। मतलब आई वुड इनकरेज एवरीवन, मतलब अक्सर पाकिस्तान में डिस्कशन होती है कि और पाकिस्तान में तो कोई प्लेयर नहीं, फुटबॉल नहीं है, मैं तो आर्सेनल को सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ। उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि उन बेचारों को पाकिस्तानी फुटबॉल देखने को मिल नहीं रही। जो ऐसा जब प्लेयर आता है ना, तो आपको खुशी होती है उसको देख के, सम ऑफ दीज प्लेयर्स के उसका टच है, एक खूबसूरती है उसकी फुटबॉल के अंदर, वो देखने को मिलती है। और एक आखिरी चीज़ मैं इस पर कहूँगा, फिजिकल गेम और उसके ऊपर
पाकिस्तान का तो फिजिकल गेम, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फिजिकल गेम से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी टेक्निकली अच्छी गेम हो, बिकॉज जिन मौसम में आप खेल रहे होते हो इज़ वेरी सिमिलर टू साउथ अमेरिकन वेदर्स, और सोलानो ने भी इसकी बात की थी कि वेदर कंडीशंस बड़ी सिमिलर है, तो हम उतनी हाई पेस फुटबॉल नहीं खेल सकते जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ खेलती हैं, बिकॉज मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो ये चीज़ इतने सालों में किसी और को क्यों ग्रास्प नहीं हो सकी थी कि यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक फुटबॉल खेलनी है या टैक्टिक्स बनाने हैं? आई थिंक जिस तरह कॉन्स्टेंटाइन जो पिछले कोच अभी गए भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को किसी हद तक एक्सप्रेस किया था। इशू ये आता है कि जब कोई शॉर्ट टर्म सोच से आता है, वो दे कांट टेक, देयर इज सो मच टू टेक ऑन, जो अभी हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, फ्रॉम यूथ सिस्टम टू अब अंडर 23 के साथ भी ये काम करेंगे सोलानो, विच आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी लॉट ने अगली टीम को रिप्रेजेंट करना है। काम इतना कुछ करने को होता है, वक्त इतना छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट पिछले कोच का 1 साल का था, और वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप आप क्या करोगे? करते हो? 1 साल और आपके मुल्क में लीग नहीं हो रही, वो क्या देख रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जब एक इंटरनेशनल कोच फुटबॉलिंग की जो ये ड्यूटी है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम एनी अदर असाइनमेंट। उसका मसला ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है कैलेंडर में। जब आपकी, जिस तरह हम यूरोपियन कैलेंडर में अभी इंटरनेशनल ब्रेक आई है, वरना लीग्स चल रही हैं, आपको बहुत कम टाइम मिलता है नेशनल साइड के साथ काम करने का। And how long do we know Solano का contract? It's a 2-year plus contract, right? Yeah. So it's around that window. Yeah. And the problem with him is कि I was also speaking to him कि I asked him, I said, how will you select the team? मतलब लीग तो हो नहीं रही, तो how would you see कि कौन किसको select करना है? So that's where other people come in, reliable people who give him that information that he requires. And that's why ये जो सारी सिलेक्शन इश्यूज आए थे उसके ऊपर आई थिंक मतलब सोलानो को अकेले ब्लेम करना थोड़ा गलत है, बिकॉज वो तो अभी आए हैं ना, तो मतलब आपको सिस्टम कोई, फॉर एग्जांपल कार्लो एंचेलोटी, वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द वर्ल्ड, अभी वो ब्राज़ील गए हैं, ठीक है। अगर ब्राज़ील की लोकल लीग के अंदर से कोई फुटबॉलर कमिंग थ्रू आ रहा है तो उसको कोई उसका स्काउट ही बता रहा है ना कि ये एस्टवाओ है, इसको देख लो, यू नो, स्काउट इज टेलिंग हिम। तो पाकिस्तान में कोई स्काउटिंग भी प्रॉब्लम है। दूसरा, द पीपल दैट हु आर डूइंग दिस, मतलब मैं पूरी दुनिया में क्या हुआ, एक एवोल्यूशन आई इन फुटबॉल इन, एंड दिस ऑल स्टार्ट विद अमेरिकन स्पोर्ट्स के बेसिकली नर्ड्स स्टार्टेड टेकिंग ओवर स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट। तो अमेरिकन स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुआ, फिर फुटबॉल के अंदर भी स्काउटिंग सिस्टम्स। वेंगर वाज द फर्स्ट वन जिसने XG बोला, तो इंग्लिश प्रेस परेशान होगी कि XG होता क्या है, मतलब एक्सपेक्टेड गोल्स, एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेज टू मेजर अ टीम सक्सेस। तो ये जो नर्ड्स का टेक ओवर हुआ ना, उनकी एक्सपर्टीज एक्चुअली स्पोर्ट्स ही हैं, और स्पोर्ट्स में वो नर्डिज्म है। लेकिन हमारे क्या होता है कि उस स्पोर्ट्स से उस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बंदा एडवाइस कर रहा है। मतलब अगर आप उससे पूछोगे कि यू नो डेटा क्या होता है, एक तो डेटा मिस इंटरप्रेट होगा, दूसरा उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो उसके आखिरी रिजल्ट्स आपको आएंगे वो बुरे हैं। अब सबसे आगे कौन है? कोच है, सबसे आगे ये लोग हैं। अब कोच का क्या कसूर अगर लीग ही नहीं हो रही है? पूरी टीम होती है पीछे जो कि आपको सारा डेटा प्रोवाइड भी करिए। नॉट ऑल डेटा इज यूजफुल आल्सो, सो यू हैव टू मेक इट मेक सेंस फॉर यू एंड फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक बड़ी खैर एक लंबी डिस्कशन है, और जिसका आई डोंट थिंक कि अभी हमारे पास इतना टाइम है, बट आई थिंक कि दिस इज़ वर्थ अ डिस्कशन। एंड जो लोग भी घर पे भी देख रहे हैं एंड who are interested in talking about football and knowing what's happening in Pakistan football, I think this time right now is a great time to learn about what's happening at our grassroots level as well, and also showing some support to the local team, because right now we're playing the Asian Cup qualifiers, and hopefully इस local support को देखने के बाद morale boost भी हुआ होगा टीम का, and we'll hopefully be seeing some good results. Moving on to the European qualifiers जो कि 2026 वर्ल्ड कप के लिए खेले जा रहे हैं, एंड फ्रॉम व्हाट वी नो राइट नाउ, लेटेस्ट जो न्यूज़ अगर आप हमसे शेयर कर सके, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिकन जो क्वालिफायर्स है उसमें क्वालिफाई कर गई है, एंड आई थिंक टोटल 6 टीम्स क्वालिफाई की हैं, जिनमें से ये भी 3 टीम्स हैं, और बाकी 3 टीम्स कौन सी हैं साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स? आई थिंक कोलंबिया, बोलिविया एंड I think it's Ecuador if I'm not mistaken. But it's a very widely spread out qualifying round, right? आप थोड़ा सा अगर viewers को भी बता सकें who are watching at home, how do these qualifiers work? And region wise होते हैं, continent wise, how are they spread out? So basically जिस तरह आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना, एक्वाडोर, कोलंबिया, यूरुग्वे, ब्राज़ील, टॉप 6 जो है उन्होंने ऑटोमेटिकली, इवन पैराग्वे, टॉप 6 ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती है कॉन्मेबॉल जिस तरह यूएफए यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, कॉन्मेबॉल साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है,
और मज़े की चीज़ ये है कि हर किसी का चार्टर डिफरेंट है, वो उन्हें एक फ्रीडम दिया गया है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो वो एक लीग स्ट्रक्चर करवाती है होम एंड अवे मैचेस में, फिर टॉप 6 साइड्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप में हैं भी 48 टीम्स। इसी तरह एशिया में राउंड वाइज चलता है। सो पाकिस्तान जिस तरह फर्स्ट राउंड में अपना मैच कंबोडिया के खिलाफ जीता और सेकंड राउंड में उसने क्वालिफाई कर लिया, तो 1 से 26 तक टीमें ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में क्वालिफाई करती हैं एशियन जो रैंकिंग है। और पाकिस्तान 27 से 46 के दरमियान था, तो पाकिस्तान ने वो मैच जीतकर क्वालिफाई किया। सेकंड राउंड में ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स को जो टॉप करता है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टली टू द वर्ल्ड कप, एंड देन देयर इज अनदर राउंड फॉर टीम्स जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं इन फोर्थ राउंड। और पाकिस्तान अभी जो टीमें नहीं क्वालिफाई कर पाती वो क्वालिफिकेशन चली जाती है एशिया कप की तरफ, जो कि सऊदी अरब में होने वाला है 2027 में। उसकी पाकिस्तान अभी क्वालिफाइंग राउंड्स खेल रहा है। इसी तरह आप यूरोप में चले जाएं तो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसमें 12 ग्रुप्स बने हुए हैं डायरेक्ट। जो भी उन 12 ग्रुप्स को टॉप करेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यूरोप में इस दफ़ा 16 पोजीशंस हैं, वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा हो गई हैं। जो नहीं कर पाएगा, what's happening at the European side of qualifiers right now? यूरोपियन में बिकॉज साउथ अमेरिका के सितंबर में ख़त्म हो गए थे क्वालिफायर और पता था कि कौन जा रहा है वर्ल्ड कप में। यूरोप में द कॉम्पिटिशन हीटिंग अप, तो टॉप साइड्स की अगर आप बात करें फ्रांस की, स्पेन की, पोर्चुगल की, दे आर लीडिंग देयर ग्रुप्स। लेकिन कुछ सरप्राइज रिजल्ट्स यूरोप में आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें 4 टीमें हैं, बाकी ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें 5 हैं। जो टॉप करेंगी अपने ग्रुप्स को वो क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो नहीं टॉप करेंगी वो फिर जो सेकंड टियर की टीम है वो प्लेऑफ्स खेलेंगी। Or Italy is also one of the teams that has qualified, right? Italy is actually struggling to qualify this time around, which is Once again, what's happening with Italian football? Like ऐसा क्या turmoil है जो कि उनसे बैलेंस नहीं हो रहा? इटालियन फुटबॉल इज़ वन ऑफ लाइक साउथ अमेरिकन फुटबॉल, इटालियन फुटबॉल मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बिकॉज टैक्टिकली अगर आपने फुटबॉल समझनी है तो आप या साउथ अमेरिकन फुटबॉल से समझते हैं या इटालियन फुटबॉल से समझते हैं। एंड इटालियन फुटबॉल वाज सो सुपीरियर टैक्टिकली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक टाइम था 80s एंड 90s, लेट 90s तक कि सेरिया A वाज कंसिडर्ड द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू डिड वेल इन इटालियन सेरिया A यू आर कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड होते थे स्क्वाड के अंदर, तो जो भी 3 आते थे वो आप मतलब मैराडोना, प्लाटीनी, इस टाइप के प्लेयर होते थे, और जो बेंच पे बैठे होते थे फॉरेन प्लेयर्स आप कहते थे यार ये दुनिया में किसी और टीम के अंदर स्टार्टर होगा। अब हुआ क्या कि सेरिया A के अंदर वो पैसे नहीं रहे, सही है, और जो टैक्टिकल एज थी सेरिया A को वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रही, क्योंकि सारे जो उनके टॉप कोचेस अब आ रहे हैं ना वो सब या इंग्लैंड जा रहे हैं या स्पेन जा रहे हैं, उनके वो कोचेस वो रहे नहीं। अब हुआ, और दूसरा क्या हुआ, बिकॉज मनी इन इटालियन फुटबॉल बिकेम लेसर एंड लेसर, और वो फिक्सिंग स्कैंडल वहाँ पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो टॉप क्वालिटी प्लेयर पहले सेरिया में खेलता था ना, अब वो चला गया स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, इस तरह के ममालिक में चला गया। अब हुआ क्या कि जो यंग इटालियन प्लेयर जो कि अंडर 19 लेवल के ऊपर उतना ही अच्छा प्लेयर है जितना एक पोर्चुगीज़ अंडर 19 का प्लेयर है, जब वो टॉप लेवल फुटबॉल में आता है तो वो क्लैरेंस सेडॉर्फ के साथ अब नहीं खेल रहा, उसको वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर नहीं मिल रहा जिसके साथ वो पहले खेल रहा था और डेवलप होता था। वो फर्स्ट टीम में खेले या ना खेले, अगर वो हर रोज़ ट्रेनिंग टॉप प्लेयर के साथ कर रहा है ना तो उससे वो काफ़ी कुछ सीख रहा है। तो क्वालिटी ड्रेन होती गई इटालियन फुटबॉल से, सेरिया से ड्रेन होती गई। अब इसकी फ्लिप साइड ऑफ द आर्गूमेंट ये है कि लोग ये कहेंगे साउथ अमेरिका में भी तो कोई लीग नहीं होती, बट साउथ अमेरिका के सारे टॉप प्लेयर्स जो है ना वो इस वक्त स्पेन या इंग्लैंड अगेन उन जगह पे खेल रहे हैं, और वो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एंड विद टॉप प्लेयर्स। वेरा सेरिया के अंदर बियॉन्ड द टॉप 3-4 टीम्स अगर आप नीचे जाते हैं तो गैप तो है वो काफ़ी ज़्यादा होता गया। अभी भी टैक्टिकली सुपीरियॉरिटी इटली की इस तरह आप समझे कि इंटर मिलान टीम थी और इंजागी उनके मैनेजर थे, मतलब उनकी रिसोर्सेज के साथ वो 2 चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे, वन विच दे शुड हैव वन वेरी इजीली, विच मैनचेस्टर सिटी एंडेड अप विनिंग। लुकाकू ने 1,500 चांसेस उस मैच में मिस किए थे, बट टैक्टिकली अभी भी उनके पास ऐसे मैनेजर्स आते हैं हु आर लाइक दैट, ठीक है, लेकिन ओवर टाइम वो मैनेजर चले जाते हैं। अब आप इंटर मिलान का अभी हाल देखें जब से वो गए हैं इंजागी, या यू नो यू लुक एट मार्से हु हैव वन ऑफ द टॉप इटालियन मैनेजर्स मैनेजिंग इन मार्से, मतलब फ्रेंच लीग के अंदर मैनेज कर रहे हैं। ये सारे पहले इटली में होते थे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट इटली के अंदर जो यंग प्लेयर आ रहा है ना वो टैलेंट तो है उसमें, बट उसमें वो नो हाउ और एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ प्लेइंग विद एंड अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। And I think the Saudi league is making it worse for them क्योंकि जो पहले प्लेयर अगर इन लीग्स में नहीं compete कर पाता था, it turned out to be ended up in Italy because वहाँ ज़्यादा technical football है, इतनी physical नहीं है,
That's going to Saudi That's League not now. happening for now. यहाँ पर एक break लेते हैं. When we come back, talk more about the European qualifiers and of course थोड़ी सी बात Premier League पे भी करेंगे. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight and we're talking football. Right now the topic is of course the World Cup qualifiers 2026 का World Cup जो कि खेला जाएगा जी USA, Canada and Mexico में. So a big एक्साइटिंग वर्ल्ड इवेंट जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उसकी जो बिल्डअप है वो अभी से शुरू हो चुका है. बिल्डअप की बात हम कर रहे थे, साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स के बारे में थोड़ी बात की एंड हसन आजम ने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हाउ द क्वालिफायर्स आर डिवाइडेड अप एंड स्प्रेड आउट एंड हाउ दे आर प्लेड डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. अब हम थोड़ा सा नॉर्वे के ऊपर भी आते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट इटली बट नॉर्वे की रिसेंट जो विन थी 5-0 विन, उनकी काफ़ी उनको मोरल बूस्ट भी मिला उससे. बट उनकी विक्ट्रीज में और उनकी टीम को आप जब देखते हैं, एक वन मैन स्टैंड्स आउट एंड दैट्स एर्लिंग हालैंड एंड ही जस्ट बिकेम द वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स टू रीच 51 गोल्स. व्हाट अ great player already he is at this age, but what is expected now from Haaland? I think Haaland एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उनके टीममेट्स, उनके कोचेस सब देख के ना वो अशश कर रहे होते हैं. जिस तरह उन्होंने पहले का रिकॉर्ड तोड़ा है. पहले का 49 मैचेस में 50 गोल्स का रिकॉर्ड था, उन्होंने 46 मैचेस में किया है. उनके ऊपर प्लेयर्स गर्ड, मुलर, पुशकास, यानी वो लेजेंड्स ऑफ द गेम. हालैंड का भी यही लगता है, ही इज गोना गो इफ ही स्टेज फिट, plays competitive football, which is going to do. He's playing for Man City and the amount of support staff he has there, he's going to be one of the best strikers to ever play the game. Wow. क्योंकि उनकी अगर आप total package की बात करें, I mean the way his left foot is one of the best in the world, his heading ability, the way he uses his body, shielding the ball, all those things you want in your striker, acceleration, everything. और ख़ास तौर पे आपके दौर में फुटबॉल ज़्यादा भी खेली जाती कंपेयर टू जितने मैचेस तब खेले जाते थे. I think Haaland has the potential to be one of the greatest strikers ever and is one of the best strikers in the world right now. That is what he brings. और एक वक्त में ज़लाटान इब्राहिमोविच का वो स्वीडन के ऊपर वो सारा इन्फ्लुएंस था, जब वो स्वीडिश टीम हम यूरोप और वर्ल्ड कप में बार बार देखते थे. अभी उन्हें मौका मिला कि वो नॉर्वे की साइड को वर्ल्ड कप तक लेकर जा रहे हैं. द सेम ग्रुप जो इटली वाला ग्रुप है और नॉर्वे स्टॉपिंग दैट एंड why not? I mean, 6 And why not if hat-tricks you for have him. someone like Haaland? Rehan, what are your thoughts on Erling Haaland becoming one of the youngest players to reach 51 goals? Just 46 games for him. I have very different and some controversial views on Whoa, Haaland. let's Number hear one, तो yes, he's a great player. I think he is one of the best number 9s in the world. And Haaland को एक बहुत major advantage है, which I think sometimes is overlooked. जब number 9s दुनिया में ख़त्म हो रहे थे ना, तो Haaland बेसिकली वो नंबर 9 दोबारा जो ट्रेंड नंबर 9 का है ना, कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर 9 हु कैन रन इन बिहाइंड, फिनिश इनसाइड द बॉक्स, फिजिकल, वो सब हालैंड मतलब वो था. अब हालैंड और एम्बापे दो ऐसे प्लेयर हैं, जब वो 16 साल के थे ना, तो तब से प्रोजेक्ट एम्बापे एंड प्रोजेक्ट हालैंड शुरू हुआ है. सो बेसिकली दीज गाइज आर लिटरली, इनके पेरेंट्स ने और हालैंड के बाप ने खासकर, दे लिटरली क्रिएटेड देम इनटू दीज मॉन्स्टर्स दैट देव बिकम. कि बेसिकली उसकी ट्रेनिंग रेजिम ये होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए. तो उनका यहाँ तक मैप आउट था कि इस साल वो इस क्लब में खेलेगा. अच्छा, बिग क्लब से ऑफर आई तो पहले ये वाला क्लब आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये वाला क्लब आएगा. यानी देयर लाइव्स हैव बीन मैप्ड अप टू अ पॉइंट. और दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, एम्बापे एंड हालैंड जनरेशन इज द फर्स्ट जनरेशन which is exactly like American sports की generations, LeBron James वगैरह वाली, not in terms of the scales of money and all, but in terms of planning, in terms of the project on one single player, in terms of player power. So अब आपको इनका पूरा career mapped out नज़र आता है. Whereas compare that to इससे अगली जो generation आ रही है, the likes of Pedri, Lamine Yamal type, वो जो है वो थोड़ा different है. वो basically it's a more freer generation. This is more a robotic generation in terms of how they were made into the players that they are. There's obviously like मतलब natural skill सब कुछ है उसके अंदर. The only doubt that I have about Haaland long term is कि until he's 30, 31, 30 इस एज के अंदर Haaland will be the highest scoring player in Europe without doubt. I don't think there's a comparison because वो इस तरह का player है. Yeah. But once he loses his pace, so does he have the technical ability that players at an older age need to survive at that top level? Number one ये. Number two ये कि हालैंड का भी हम बात करते हैं नॉर्वे के लिए. आई थिंक ही इज़ अ बेटर फिट इन नॉर्वे देन अ मोर पोजेशन बेस्ड टीम, बिकॉज हालैंड नीड्स स्पेस टू रन इन बिहाइंड.
तो हालैंड जैसा जो प्लेयर होता है ना, इवन फ्रांस की जो टीम दुनिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स फ्रांस में डाल के डेशॉम्स जो है वो उनको डिफेंसिव खिलाता था ताकि एम्बापे को स्पेस मिले टू रन इन बिहाइंड काउंटर अटैक या इवन बॉल को कैरी करने के लिए। तो आई थिंक नॉर्वे सूट्स हालैंड इवन मोर देन मैनचेस्टर सिटी था, और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी वो कोई 9 मैचों में 12 गोल मार चुका हुआ है। मतलब ही इज अनबिलीवेबल, ही इज लिटरली The consistency is unbelievable. You're almost like it's a guarantee कि if वो robot. Haaland is playing, ही इज अ रोबोट। then his देखें, name is going to be up मैं इस there बात on से the थोड़ा सा डिसएग्री scorecard. करूंगा। देखें, जो पेरेंट्स किसी लेवल पे कंपेटिटिव फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट खेले होते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे की जर्नी मैप की होती है। अब वो कईयों की पूरी होती है, कईयों की नहीं होती। इट्स अनदर और I बॉल think गेम बहुत सारे ऑलटुगेदर। बड़े एथलीट्स की अगर आप जो बायोपिक्स बनी है, जब आप उनकी स्टोरीज पढ़ते हो या उन पे बनी हुई मूवीज देखते हो, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग रोल होता है कुछ पेरेंट्स का Absolutely. इन डिटर्मिनिंग, स्पेशली एट अ यंग एज, I mean, even what the, their how, children will be doing. how old was Messi when he got signed, right? Right. Had to go through all those like hormonal injections क्योंकि उनके growth spurt नहीं हो रहे थे। लोग कह रहे थे ये प्लेयर नहीं बन पाएंगे। बारसा ने तभी इन्वेस्ट कर दिया था। Even with Michael Jordan, you know, it's a very here's- well-known fact. Here's my question, ठीक है, किसकी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? मतलब प्लेयर हालैंड इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, लेट्स पुट दैट टू साइड। मतलब अगर आज से 15 साल बाद मैंने किसी की स्टोरी पढ़नी हो तो मैं डिएगो मैराडोना की स्टोरी एंजॉय करूंगा कि या कि एक प्लेयर जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है और उसको सब कुछ मिला है, तो ज़्यादा enjoyable स्टोरी। देखें, you'll always back like against the odds, people हाँ, know. yeah. But I think it's easier said than done just to say that he had better resources of making it to that level. But regardless, making it to that level and being so good is no joke. No, Yeah, I'm but his saying point is कि that how I'm- far that I will agree that with. take him? He's right now he's the best number 9 in the world. Yeah. इसमें कोई डाउट नहीं है। But is him being the best number 9 interesting? That's the thing. Well, that's up for debate for sure. That's an interesting take also on Haaland. चलें जी, स्पेन, फ्रांस एंड पोर्चुगल के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। They're at the top of their groups right now. लेकिन इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त उनकी डायरेक्शन क्या लग रही है ग्रुप के में, एंड उनके लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती हैं आगे? अभी तो ग्रुप के को टॉप कर रही है इंग्लैंड तुखल के अंदर, और गैरेथ साउथगेट के जाने के बाद उनका बहुत अच्छा उनका स्पेल रहा था। हालांकि लोग उन्हें कहते रहे कि उतने एग्रेसिव मैनेजर नहीं है, इतनी फ्लैम्बॉयंट इंग्लैंड के पास मिडफील्ड और विंग्स है, विंग पे प्लेयर्स हैं, और वो उस तरह शायद उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। मजे की बात यह है कि थॉमस टुखल उनसे भी ज़्यादा है, ठीक है, एज फार एज डिफेंसिव अप्रोचेज एंड शेप एंड सॉलिडिटी ऑफ द शेप ऑफ द फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड। तो अब उन्हें इंग्लैंड वालों को ना गैरेथ साउथगेट की थोड़ी ज़्यादा कदर भी होने लग गई है। और दूसरी तरफ थॉमस टुखल की बात करें तो ही इज समबडी हु इज वेरी डायरेक्ट विद हिज प्लेयर्स। वो केयर नहीं करते। अभी रिसेंटली जिस तरह उनके पिछले मैच में 3-0 इंग्लैंड जीता और साका की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उन्होंने पब्लिकली आगे उन्हें कहा कि ही नीड्स टू बी बेटर एट कमिंग बैक एंड डिफेंडिंग फॉर हिज टीम। सो ही इज समबडी हु कॉल्स थिंग्स आउट एंड ही इज समबडी हु इज गोना बी वेरी कीन ऑन द फैक्ट, जो इंग्लिश फुटबॉल को जनरली पसंद भी है, कि उनका डिफेंसिव यूनिट कैसा रहेगा। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ, जो कि ओल्ड स्कूल इंग्लिश टीम वाले हम कोचेस देखते तो टुखल परफेक्ट थे उनके लिए, बट हैविंग मोर फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स लाइक बेलिंगहम एंड अदर एंड हाउ दे जॉइन इन इज गोना बी इंटरेस्टिंग। चलें थोड़ा सा अगर हम अब प्रीमियर लीग के ऊपर भी बात कर ले, बिकॉज टाइम जो है थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, बट अ वर्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड what are table toppers looking like right now? We know कि आर्सेनल जो हैं थोड़ा सा करीब हैं ऊपर, एंड लिवरपूल भी नो कि थोड़ा नैरो रहेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। लेकिन क्या हम कुछ सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली थोड़ा सा अगर हम डाउनवर्ड आए टेबल के? आई थिंक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, सिर्फ उसके बाद हसन कैन टेक ओवर। एक तो ये चीज़ कि अगर आर्सेनल इस साल प्रीमियर लीग नहीं जीता ना, तो दे हैव नो वन टू ब्लेम। मतलब उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ एंड बेंच स्ट्रेंथ, पिछले साल ये होता था कि मार्टिनेली को अगर कुछ हो गया तो ट्रॉसार्ड आ रहा है, लेकिन अगर साका को कुछ हो गया तो कोई भी नहीं है, ऑडेगार्ड को कुछ हो गया तो कोई भी नहीं है। अब दे हैव प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड, नॉट द बेस्ट स्टार्टिंग 11 बट स्क्वाड आर्सेनल के पास सबसे बेहतर है। और दूसरी मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वक्त पूरा जो प्रीमियर लीग फैंस हैं, जो प्रीमियर लीग इवन डिस्कोर्स हो रहा है, जो आप ब्रिटिश पंडित का सुन रहे हैं, सब वो फ्लोरियन वर्ड्स के पीछे पड़े हुए हैं।
ही इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेयर और उसको प्राइस टैग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसके 2-3 असिस्ट्स उसने दिए हैं जो कि फिनिश नहीं हुए, जो कि इंग्लिश फुटबॉल में सिर्फ वही दे सकता है इस वक्त. और इवेंचुअली ही इज़ गोइंग टू कम गुड इफ ही स्टेज फिट. द प्रॉब्लम राइट नाउ विद लिवरपूल इज दे कांट फाइंड अ वे टू फिट हिम इन. वेयर एज अगर आपने फर्स्ट लिया है तो यू नीड टू बिल्ड द टीम अराउंड हिम. ही क्योंकि साला is one of Liverpool's greatest players of all time, but he is towards the end of his career. For the next 5-6 years अगर आपने किसी प्लेयर के इर्द गिर्द टीम बिल्ड करनी है तो वो आपने खरीदा है, तो ही इज़ द इन्वेस्टमेंट. उसके इर्द गिर्द आपको टीम बिल्ड करनी है, वो कंफर्टेबल होगा, आपकी टीम ठीक खेलेगी. चलिए थोड़ा सा बिल्डअप भी करते हैं. द बिग गेम कमिंग अप दिस वीकेंड, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल. लिवरपूल एक तरफ जो है ऑफ कोर्स सिटिंग कंफर्टेबली एट नंबर 2, बट यूनाइटेड at number 10 will be looking. How will they be approaching this match? Because obviously it's bound to create that pressure for you. लेकिन क्या यूनाइटेड कुछ डिफरेंट लेके आ सकते हैं अगेंस्ट लिवरपूल? आई थिंक यूनाइटेड हमेशा बड़ी टीमों के खिलाफ इनकी यही स्ट्रेटजी रही है कि दे प्रेस अर्ली ऑन, और ख़ास तौर पे अपने जो आपके अटैकर्स हैं, एम्बोएमो की बात कर लें या दूसरी तरफ आप माउंट खेलेंगे या कुनिया खेलेंगे, उनकी बात कर लें, वो उन्हें यूज़ करें ऑन द ब्रेक. होम मैचेस की बात करें तो यूनाइटेड ने ज़्यादा कोशिश की है कि पोजेशन रखें, ऊपर से प्रेस करें, उनसे पोजेशन लें. लिवरपूल पे के घर जाके आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा होना चाहिए कि वो बॉल रखने वाले हैं. उन्होंने टाइम लेना अपना बॉल पे, और सेकेंडली आपकी बैकलाइन बार बार टेस्ट करेगी लिवरपूल, क्योंकि वो वैसे भी 3 मैच हारे हुए हैं. आर्ने स्लॉट ने भी कहा है कि जी मैं अपने प्लेयर से डिमांड कर रहा हूँ कि इसके बाद तो हमें फ़ौरन टर्न अराउंड करना है. अब उन्हें इंटरनेशनल ब्रेक भी मिल चुकी है, तो उनके पास एज ए लिवरपूल मैनेजर ना कभी इस पोजीशन में आए थे और कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है. सारी चीज़ें पूरी हैं. अभी विट्स की रेहान ने बात की, 2 स्ट्राइकर भी ले चुके हैं, मतलब ऑल द होल्स आर प्लग फिल, एवरीथिंग इज देयर. दूसरी तरफ एमरिम की बात करें, उन्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ये ज़रूर मिला है कि उनके रिसेंट रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और दे आर इन फॉर्म, और उनके स्ट्राइकर ने गोल करना शुरू कर दिए हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड गेम, बट यूनाइटेड विल हैव टू सोक अप अ लॉट ऑफ दैट प्रेशर अर्ली ऑन, and then on the counter attacks they would have to be quick, because they will find spaces, they will find opportunities to score their goals. If they get an early goal, Liverpool will be under pressure, and then somehow you've got to use that opportunity. जब लिवरपूल आप पे अटैक कर रही हो, आप काउंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. आप बता दीजिए लिवरपूल फैंस के पर्सपेक्टिव से हाउ टू काउंटर. एक तो मैं लिवरपूल फैन नहीं हूँ थैंकफुली, बट ना यूनाइटेड फैन, सो आई कैन न्यूट्रली टॉक अबाउट इट. सो बेसिकली पिछले साल लिवरपूल के साथ एक चीज़ हुई थी कि आर्ने स्लॉट केम इन, they won the season with 84 points. That's one of the lower tallies of a team winning the Premier League. ठीक है, and at no point during the season the second place team challenged them. मतलब हमेशा 4 पॉइंट का गैप, 5 पॉइंट का गैप ऐसे रहा from the start of the season. ये पहली दफ़ा है जब से वो मैनेजर आए हैं जहाँ पे लीग के अंदर उनके ऊपर प्रेशर आया है. मतलब जहाँ पे उनका बिग टेस्ट था अगेंस्ट PSG, जहाँ पे दे लकीली वन, वेरी लकी, मतलब वन ऑफ द लकीस्ट विन्स आई हैव एवर सीन अवे एट PSG, बट देन लॉस्ट एट एनफील्ड. तो उनका आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे उनका रियल टेस्ट है. व्हाट ही डिड इन सीजन 1 विनिंग द प्रीमियर लीग वाज ह्यूज, बट यू आल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट दैट द चैलेंजर्स एट द टाइम weren't as great. ठीक है, तो एक तो वो चीज़ है. दूसरी चीज़, अगर ऑन पेपर आप दोनों टीम्स को बैलेंस की बात करें तो लिवरपूल आर अ सुपीरियर टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है. लिवरपूल शुड फैंसी देमसेल्व्स एट होम टू बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड. हसन सेड के मैनचेस्टर यूनाइटेड अब in my opinion have always been a better team playing against better opposition. मतलब यूनाइटेड का आप साउथहैम्पटन से मैच करा देंगे तो मुझे ज़्यादा चांस लगेगा कि यूनाइटेड माइट गेट बैटर्ड हेयर rather than say against Arsenal, Liverpool and all. Yes, they lost 7 something a couple of seasons ago against Liverpool, but they as a team, when they play as underdogs, they have a better chance. They have a better chance. But Anfield के ऊपर I find it very difficult for Manchester United to win. Have they won back-to-back Premier League games? Yeah. First time? Yeah. Oh my God. I think United itself would be very happy with a draw. Even a draw if they could get that. यार which team wouldn't be happy getting a draw at Anfield? Absolutely. Absolutely. Every team, मतलब जिस पोजीशन पे वो भी हैं on the table, they would really want points one way or the other. So I think it will be an exciting weekend. Anything else on the weekend? Premier League का और क्या action है और क्या I think एक और match जो I'm really looking forward to is Crystal Palace against Bournemouth.
बिकॉज पैलेस ने लिवरपूल को हराया हुआ है और बोर्नमथ टॉटनम को हराई। टॉटनम भी इस वक्त टॉप 4 में है और मज़ा इस तरह आता है कि हमने ये बात, रेहान ने भी अभी ये बात की कि इस साल कंपटीशन हमें अंदाज़ा था डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हर टीम ने अपनी स्क्वाड ऐसे बिल्ड कर ली है। उसमें इन क्लब्स को भी फ़ायदा हुआ क्योंकि पिछले साल इनकी रैंकिंग्स ऐसी रहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ अपने प्लेयर्स भी उन्होंने जोड़ी रखे। और जब इन फॉर्म साइड्स का आपस में मैच होता है ना, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग फुटबॉल। These are two in-form sides. They're doing well on the table. They're scoring goals. So I think that's one of the matches of the weekend to watch out for. चले रेहान, anything else that you are looking forward to from this season? Because you know कुछ surprises अभी हमें नज़र आ रहे हैं टेबल पे. Of course, Bournemouth is at number 4. टॉटनम अभी 3rd प्लेस पे बैठे हुए हैं. ये क्या करेंगे आगे? टॉटनम की जर्नी इस सीजन में आप कैसे देखते हैं? जिस तरह टॉटनम की हर सीजन जर्नी होती है, यू वुड थिंक दैट दे आर अ गुड टीम एंड जस्ट व्हेन यू थिंक दे आर अ रियली गुड टीम दे प्ले अ रियली बैड मैच, नो मैटर हु देयर कोच इज, नो मैटर हु कम्स इन. You know, they started off the season, I love their coach, I think he's brilliant, he's very adaptable. They did really well और दरमियान में उन्होंने एक मैच खेला जिसमें लग रहा था कि कोई रेलीगेशन वाली टीम किसी टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रही है. सो दैट्स आई थिंक वो स्पर्स का एक मसला रहा है और अनलेस दे विन FA कप और यू नो सम कप, वो हमेशा उनके ऊपर एक स्टिग्मा रहेगा. आई थिंक इट ऑल्सो प्लेस इन द पार्ट कि वो पूरा क्राउड भी वो क्योंकि वाइट वो बेसिकली उनका पूरा स्टेडियम को ही पता है कि हम लोग यहाँ पर यू नो एनीथिंग कैन हैपन, वी आर स्पर्स. सो जब तक वो एंजाइटी रहेगी, वो एंजाइटी ट्रिकल्स डाउन टू द प्लेयर्स एज वेल. एंड वन थिंग आई वुड वांट टू पुट माय नेक आउट इज़ के हम लिवरपूल की बात कर रहे हैं, हम आर्सेनल की बात कर रहे हैं, एंड आई वांट टू पुट माय नेक आउट एंड से दैट मैनचेस्टर सिटी इज गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन अगेन बिकॉज पेप गार्डियोला, he doesn't have Kevin De Bruyne, Rodri is out injured again, all of those things. But this is a time for Pep to show how good he is as a manager because this, matlab, Ferguson, the season that I thought Ferguson was actually as good as people said he was, is a season when he lost Tevez and all those players and still ended up winning the Premier League. That was the last season. Yeah. Farewell season. So who is going to win the Premier League according to Hassan Azam? Rehan Al-Haq ने तो बता दिया जी, it's going to be Man मैं City तो once लेफ्ट again. फील्ड एज यू लेफ्ट फील्ड हूँ भाई. मैं इस मूवी की एंडिंग नहीं अभी बताऊंगा. नहीं, still, who do you think are your serious contenders? I honestly believe कि ये सीजन पिछले 5-6 सालों में सबसे competitive होने वाला है क्योंकि genuinely Arsenal could win it, Liverpool could win it, City could win it. तो ये तीन मेरे लिए genuine title contenders हैं, including Arsenal obviously this season. And Chelsea are there and thereabouts, and they're here to spoil the fun for everybody. So honestly, I couldn't pick one वैसे at the moment. कितनी बोरिंग लीग है प्रीमियर लीग. मतलब पिछले 8-9 सालों से 2 ही टीमें जीत रही हैं. मतलब Yeah, I think it's about time कि स्पेन में कौन कोई जीत रहा है पिछले 8 3 टीमें जीती हैं. एटलेटिको एक ज़्यादा? नहीं, 2 दफ़ा एटलेटिको जीती है. तो लिवरपूल भी 2 दफ़ा जीती है. not a fan of English football. No, I think I'm थोड़ा just सा saying that when English boring हो football रहा है fans आपके। say, "Oh my God, such a competitive league," तो आपके मुल्क में भी 2 ही टीमें जीती हैं, बाकी जगह भी 2-2 ही जीत रही हैं. मतलब what's the difference? चलिए, अभी still there's a long way to go, but I think City can be one of those teams that can find their way back to the top because उन्होंने बार-बार वो किया हुआ है, तो they're very used to the pressure of, especially when you enter that phase of the season. Hassan Azam, Rehan Al-Haq, thank you so much for your time and analysis, and thank you guys for watching Sports Tonight. Make sure that you're following us on social media, Facebook page, Instagram page, Twitter, X, everywhere. And also on YouTube, you've subscribed to our YouTube channel ताकि आप BTS content भी देख सकें और हमारे शो को बाद में आराम से बैठ के भी देख सकें if you want. Thank you so much for watching Sports Tonight. This is Rohan Nadeem. I will see you in the next one. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.